So now I welcome CS Yogesh Thakre sir. Before he takes the session, I would like to give a brief introduction about him to all of us, to all of you. Uh, he's a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India and has served as the chairman of Bhopal chapter. He has a vast experience of 15 years professional experience in various corporate houses. He has served as the company secretary of Bhopal Smart City Development Corporation Limited, as we all are aware of, and chief operating officer of the B-Nest Incubation Center, which he built from scratch. Thakre sir holds MBA in finance and also holds a law degree, LLB degree from Mumbai University, which gives an administrative edge to his profile. He has been the member of Board of Studies of the Bhopal School of Social Sciences for the year 2015-16 and regular speaker at various conferences, seminars, workshops, and other professional programs. His areas of expertise include compliance of startup companies, corporate, legal, and financial services. He has worked with several reputed organizations such as Kotak Securities Limited, IDBI Limited, IDBI Bank Limited, etc. So without any further ado, I invite Yogesh sir to interact with our students and guide them further. Yogesh sir, please. Thank you, Ankit. And I would like to thank Jagran Lake City University for inviting me here to interact with the young brains of the university. And I remember last year we had an MOU signed in my chairmanship with Jagran Lake City University, and we decided to host such kind of sessions physically on your university campus or in our neutral campus somewhere. But after that, it happened like everybody knows what happened, COVID. And so this is the first interactive session under that MOU, what we have signed. So as you know that Amit Bhai also told us that how important is the company secretaryship course. But after COVID, I must ask you, like after having a half an hour session, how many of you are having like bulb on about the CS course? Please write in chat box so that I can see how many of you are really wanted to know about CS, or how many of you really interested to know about the course. Please write in chat box BO, bulb on. So I want to make it more interactive. BO, bulb on. Yes, 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 I'm seeing it. So Amit Bhai has set the tune, what company secretaryship is. So I just wanted to continue in that. Do you guys want to have a course as an option after COVID, which give you an option to become to go for employment also, or to become a practicing company secretary, or go for in practicing? Like you can be in employment, or you can start your own business as an entrepreneur. Do you want to have such course? Say yes or no. I believe nobody say no, because becoming an engineer, you will go for an employment. Being an MBA, you will go for an employment. But this course, like CA, CS, these course, or doctor. Have you seen doctor? The doctors are working in hospitals also. Doctors are having their own practice also, right? So this membership will give you authority and right to sign your practicing membership number, as well as you are having right to file your DIR 12 in employment as an employee, as a KMP. So this is the course which offers both the options to you to make your career as a good employee, as a good entrepreneur, right? So मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास जितने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे, अर्निंग होंगे, उतना आप ग्रो कर पाएंगे. जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, उतना आप ग्रो कर पाएंगे. तो हमेशा उस कोर्स के बारे में आपको जानना चाहिए जो कोर्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है. एंड दिस इज वन ऑफ द कोर्स व्हिच गिव्स यू मल्टीपल ऑप्शंस. कैसे? जो अमित भाई ने बताया, मैं आपको वापस कंटिन्यू कर देता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट में आपको अंडर कंपनीज एक्ट 2013 यू विल बी कंसिडर्ड एज
KMP. What is KMP? Key Managerial Person. तो की मैनेजर पर्सन कौन होता है कंपनी में? मैं आपको नाम एक एक बताता हूँ. मैनेजिंग डायरेक्टर. Everybody knows who is managing director, right? Chief Executive Officer, whole-time directors, Chief Financial Officers, and Company Secretary. तो आप सोचिए कि आप टॉप लेयर में हैं. एक ये कोर्स करने के बाद आप सीधा टॉप लेयर में आ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं. दुनिया का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको सीधा टॉप मैनेजमेंट में पहुंचाता है, राइट? इवन अगर आप सीए भी करेंगे ना, तो आपको वो आप ऑडिटर बनेंगे कंपनी के, तो वो एक आउटर मैनेजमेंट का पार्ट रहता है, एक आउटसाइड वर्ल्ड का पार्ट रहता है, बिकॉज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज हायर्ड फॉर हिज सर्विसेज. लेकिन कंपनी सेक्रेटरी आपका इंटरनल मेंबर रहता है, इंटरनल केएमपी रहता है, ठीक है? सीएफओ भी रहते हैं, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफओ की पोस्ट पे आ गए तो फिर वो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. बट दिस कोर्स विल डायरेक्टली कनेक्ट यू टू द बोर्ड, directly give you ticket to the boardroom. No any course will offer such ticket to the boardroom, as Amit bhai said. So see the importance of this course कि आप ये कोर्स क्वालिफाई करके सीधा आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं और सीधा आपके पास केएमपी की पोजीशन आ जाती है, की मैनेजर पर्सन. तो सोचिए कि आपके पास कितना स्कोप है ग्रो करने का, राइट? आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो कंपनी चलाते हैं. तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जब आप CS का कोर्स करते हैं और you got to know how to run a company and you will guide the board of directors, the key managerial persons, how to run a company under four corners of law. So why don't you give a chance to yourself and start your own company? तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि भाई जो भी कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहा है वो एक मौका अपने आप को खुद दे एक कंपनी चलाने का. So that you will become a job provider rather than job seeker. क्योंकि आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जॉब्स की कितनी किल्लत होने वाली है. तो ये कोर्स आपको एक तो एज ए एंटरप्रेन्योर बनने का, एक प्रैक्टिस में जाने का भी अपॉर्चुनिटी देता है. दूसरा, आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटल हो रहा है, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, IoT ICT टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में कम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आपको एक आइडिया को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना आता है, कंपनी चलाना आता है, तो उन इंजीनियर्स को, उन टेक्नोक्रेट्स को हायर कर सकते हैं एज अ CXOs इन योर कंपनी. फॉर्म योर ओन कंपनी, बिकम अ डायरेक्टर, because you are company secretary, you know how to appoint director, how to become a company secretary in the company, how to run a company under four corners of law. So you can appoint such engineers, technocrats जो कि आपके लिए उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Have a business model, have a financial model, and run that company successfully. So I will tell you what are the key roles of a company secretary once he qualifies as a company secretary. मैं आपको बता रहा था कि जिसमें कि आपका एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाता है. जैसे ही आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, you will become advisor to the board of directors. Board of directors will rely upon you. They will ask each and every nitty-gritties of entering into a contract with any company, getting loans from bank. तो आपको 180 सेक्शन के बारे में पूछेंगे. आपको बताना पड़ेगा कि सर हमारी लिमिट जो है, हम अपनी पैड अप कैपिटल के बराबर ही लोन ले सकते हैं, उससे कम ही लेना पड़ेगा, ज्यादा नहीं ले सकते हैं. तो these are the crucial decisions which will be decided in the board and never else. Like neither you can decide it in the executive committee, neither you can decide it in the any technical committee. You have to take this matter into the board. And who is leading from the front? The MD, the chairman, and who will be asked for these questions? The company secretary. So the brain behind the board of directors is you, is the company secretary. He is the key managerial person. He is the compliance officer. He looks after all the compliances, whether the company is following corporate governance norms or not, whether the company is filing its balance sheets properly on time, whether the company is filing the respective forms of directors on time, paying the tax on time, paying the GST, filing the challans. So these are the compliances which you have to take care, because you have to become a whistleblower. If these things are not happening by your department heads, then you have to notify them with proper mails, with proper circulars, that these are the scheduled dates of filing the forms and you are not complying that. So you have
you have become whistleblower. तो आप कंपनी के विसल ब्लोअर होते हैं, आप कोई भी गलत काम होते हुए ना देख सकते हैं ना करने देते हैं, राइट? इन प्रैक्टिस यू विल बिकम सेक्रेटरियल ऑडिटर, in employment you will become corporate risk manager. आपकी कंपनी में जो रिस्क आपके बिजनेस को देखते हुए जो रिस्क आएंगे फ्यूचर में, so you will be asked how to mitigate these risk factors by the board. तो आपको कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की पोजीशन भी आप उस पर भी आ सकते हैं और एक अच्छा करियर ग्रोथ ले सकते हैं. चीफ गवर्नेंस ऑफिसर तो आप रहते ही हैं कंपनी में. चाहे कोई सी भी पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है, सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी से ही पूछा जाता है कि इस पॉलिसी में हमने क्या गाइडलाइंस रखी थी और whether it is being followed by the company or not, and what steps we have to take to follow these guidelines. So you are in an advisory role. आपको एडवाइजरी रोल में हमेशा रहोगे, आप चाहे प्रैक्टिस में हो जाए चाहे कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो, आप एडवाइजर टू द बोर्ड हैं और वो किसी भी मैटर पे पूछ सकते हैं. फिर आपको ये नहीं है कि भाई ये पता नहीं है वो पता नहीं है. तो ये कोर्स आपको प्लेथरा ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करता है. एवरी बिट्स एंड पीस ऑफ एवरी लॉ आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता रहता है, सो दैट कि आप इमीडिएटली उसको टेकल कर सकें क्वेश्चंस को. उसके बाद आप डिटेल नॉलेज के लिए एक्ट्स रेफर कर सकते हैं. लेकिन आपको इतना पढ़ा दिया जाता है इस कोर्स में कि आप कभी भी अनआंसर्ड नहीं रहेंगे, आपके पास उस चीज का आंसर रहेगा ही रहेगा. इसलिए आप ये सोचिए कि एक ऐसा कोर्स है जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस के साथ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करता है. यू विल बिकम कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजर. मर्जर्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशंस जितने भी होते हैं कंपनी के, कौन डिसाइड करता है? एक कॉर्पोरेट लॉयर, एक कंपनी सेक्रेटरी. कैसे स्वैपिंग रेशियो होना चाहिए, कितने शेयर एक शेयर के बदले में कितने शेयर एक कंपनी देगी. अभी देखा आपने आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ, हाँ, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? कंपनी सेक्रेटरीज मिलकर डिसाइड करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कि किस रेशियो में कौन से शेयर होल्डर को कैसे कंपनी को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, कंपनी को कितने शेयर ऑफर करने पड़ेंगे, हाँ, कंपनी को कैसे लिस्ट करना पड़ेगा, लिस्टिंग के नॉर्म्स क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकर के साथ कैसे डील करना है, क्या आपका पी रेशियो रहेगा, क्या मल्टीपल रहेगा, क्या वैल्यूएशन रहेगा. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू बी डन. तो आप अपने आप को तैयार करिए. अभी आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपकी बत्ती जल रही है. इंटरनल ऑडिटर का काम आप कर सकते हैं, जीएसटी प्रोफेशनल का. इसके साथ साथ बता रहा हूँ मैं, ये एडिशनल है. इंटरनल ऑडिटर भी बन सकते हैं, जीएसटी प्रोफेशनल भी बन सकते हैं. रजिस्टर वैल्यूअर, किसी भी कंपनी को, कोई स्टार्टअप कंपनी बनती है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट रीच करना है तो उससे एक चीज मांगी जाती है, आप अपना वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लाओ. वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड वैल्यूअर. एंड हु विल बी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर? कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जिसके पास वो अथॉरिटी है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देने का. इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना है तो आप इतना इसमें इतना शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसके बिना इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है. सो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको एक राइट दे दिया, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन गए हो. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, किसी कंपनी के ऊपर अगर इंसॉल्वेंसी का एक्ट लगा है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आप देखिए अभी इंसॉल्वेंसी एक्ट आया, एनसीएलटी आया, उसमें कितनी कंपनीज को बंद किया गया है. तो उसमें मेन रोल जो प्ले करता है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है. पहले कंपनियां चलती रहती थी, कोई बंद नहीं कर पाता, लेकिन इंसॉल्वेंसी एक्ट के बाद इंसॉल्वेंसी का एक टाइमलाइन डिसाइड हो गया कि विद इन 180 डेज में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके उस कंपनी के ऊपर डिसीजन आना चाहिए कि उसका लिक्विडेशन होके एसेट न्यूट्रलाइज करके कंपनी बंद कर दी जाए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाए, ताकि किसी भी क्रेडिटर को कोई लॉस ना हो और उसके लॉसेस को रियलाइज किया जा सके. इसमें कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है. राइट? सो अगेन चैट बॉक्स में लिखिए आपको कुछ समझ में आया. बेल बॉर्न, क्या क्या मेजर रोल प्ले कर सकते हैं बल्ब ऑन. एंड इफ बल्ब इज ऑन देन आस्क मी टू ब्रिंग इट ऑन अबाउट द कोर्सेस, कि कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं आपको. उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एम्प्लॉयमेंट में कंपनी सेक्रेटरी कैसे हेल्प कर सकते हैं. ही कैन बी हेल्पफुल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ द कैपिटल मार्केट थ्रू आईपीओ एंड एफपीओ. जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने में, और एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स. ठीक है, अभी जियो का आया था, रिलायंस ने निकाला था अपना. तो आप ये कैसे निकालते हैं, इसके पीछे एक टीम काम करती है और उस टीम को लीड कौन करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, तो आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, आप उस टीम के लीडर बन सकते हैं. Mobilizing global resources through FDI, foreign direct investment, ECBs, external commercial borrowings, ADRs, GDRs, American Depository
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड GDRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इन सब में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। मतलब आप सिर्फ इंडिया के लॉ ही नहीं, आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कैसे लाई जा सकती है, डेट सिंडिकेशन कैसे किया जाता है, डेट फंडिंग कैसे अरेंज करते हैं, है ना, प्रेफरेंशियल शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कैसे लिस्ट कर सकते हैं, NCDs कैसे ला सकते हैं, ये सब आप सीख सकते हो। मैनेजिंग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, पूरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आपको सिखाया जाता है। एक प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैं जिस कंपनी में हूँ स्मार्ट सिटी में, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपने न पहले मिली है किसी को, ना आगे मिलेगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी एक नया कॉन्सेप्ट है और आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने को मिल रहे हैं सिटी के अंदर। आपको एक सिटी क्रिएट करनी है विद इन द सिटी, एक मॉडल सिटी जिसमें कि ICT कंपोनेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, अच्छे रोड्स हो, वाटर मतलब अंडरग्राउंड वाटर यूटिलिटी टनल्स हो, वेस्ट मैनेजमेंट अंडरग्राउंड हो। तो इन सबको करने के लिए उस टाइप के टेंडर्स डिजाइन करने पड़ते हैं ताकि आप उस टाइप के वेंडर्स को ला सकें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको ये ट्रेडिशनल सिटी को बदलना है, आपको एक नई सिटी डेवलप करनी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको ऐसे टेंडर्स डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि वैसे ही वेंडर फिट हो उसमें। तो आपको टेंडर कौन डिजाइन करेगा? तो उस टीम में भी कंपनी सेक्रेटरी रहता है कि वो उसके फाइनेंशियल्स, उसकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या नेटवर्क होना चाहिए, क्या कंसोर्शियम पार्टनर्स की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये सब चीजें टेंडर डॉक्यूमेंट डिजाइन करने को मिलते हैं हमें, और वेट करने के लिए कि ये प्रॉपरली टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया कि नहीं। क्योंकि अगर टेंडर डॉक्यूमेंट इज द की डॉक्यूमेंट, अगर आपने वो सही नहीं बनाया तो फिर कोई सा भी वेंडर उसमें फिट हो जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आपको बहुत ही माइन्यूटली वो देखना है कि टेंडर डॉक्यूमेंट सही बना हो, उसको फ्लोट करते हैं, उसमें बिड्स आती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, और उसके बाद आप उसको POC के लिए मीटिंग में बैठते हैं। तो मैं भी POC की मीटिंग में बैठा हूँ 300 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में। हमें स्पेशली बिठाया जाता है कि भैया आप देखिए नेटवर्क जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इनका कंसोर्शियम एग्रीमेंट सही है कि नहीं सही है। तो हमने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को, उसमें कई खामियां निकाली है और अप्रिसिएशन मिला है हमें कि यार इनकी वजह से ये फला वेंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि इसने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया, POC में रिजेक्ट कर दिया था। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी वी आर हैविंग। मैनेजिंग जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन कोलैबोरेशन within and beyond India, we can do it. Treasury and financial management हमने मैनेज किया, इंक्लूडिंग लोन सिंडिकेशन, जैसे मैंने बताया आपको, टैक्सेशन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये 1000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है स्मार्ट सिटी को जो फंड मिला है, ये कम से कम 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? तो आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है, आपको ऐसा रेवेन्यू मॉडल बनाना है, सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जिसके ऊपर फंडिंग हो सके। उसमें भी हमारा रोल आता है, हम लोग ही बनाते हैं वो। Ensuring due diligence and compliance of all the laws applicable to the company, जितने भी लॉज कंपनी पे एप्लीकेबल है उसका आपको इंश्योर करना पड़ता है। इनिशियल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, जो मैंने बताया आपको। तो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आपका एक सर्टेन परसेंटेज, 2% ऑफ योर प्रॉफिट विल बी मीन्ड फॉर CSR, है ना। तो वो CSR की कमेटी बनती है, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है फंड को, और कब तक यूज किया जा सकता है और कैसे यूटिलाइज होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक की मैनेजर पर्सन बनाती है। एंड व्हाट इफ द कंपनी डज नॉट एंगेज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी को क्या लॉस होगा? कंपनी को रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, कि कंपनी को कभी पता ही नहीं रहेगा कि हमारा कंपनी कंप्लाई कर रही है सारे एक्ट्स को या नहीं कर रही है। वैल्यूएबल एडवाइस टू द बिजनेस नहीं मिल पाएंगे आपको। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी को रखते हैं और उसको 10 लाख रुपए देते हैं, और आप कंपनी सेक्रेटरी को नहीं रखते हैं और 20 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है आपको, तो आप क्या चाहोगे? भाई कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना मस्ट है। एंड दिस लाइक, क्योंकि उसके उसके बिना डायरेक्टर की रिस्क काफी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टर का डायरेक्ट एडवाइजरी कौन रहता है? कंपनी सेक्रेटरी। अगर वो नहीं रहेगा तो डायरेक्टर को खुद उतना नॉलेज होना चाहिए, खुद उतने एक्ट्स पढ़े होने चाहिए, अदरवाइज वो हमेशा क्वेश्चन में रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो इन्वेस्ट होता है, एक सही डिसीजन लेने के लिए जो कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट हमेशा पेनल्टी की कॉस्ट से कम रहती है। इसलिए आपको कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को कंपनी में रखना ही चाहिए, और रखते ही है, समझदार डायरेक्टर्स रखते ही हैं इसमें, है ना। तो नाउ आई वुड लाइक टू हैव परमिशन टू शेयर माय स्क्रीन, बिकॉज मैं आपको कोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और अमिता मैम, वुड यू लाइक टू शेयर और शुड आई कंटिन्यू? Sir, I have allowed the sharing of screen, so any one of you can share their screen, sir. Yeah, so I have shared the screen. Is it visible?
Yes, sir. Yes, sir. Visible. It is visible, right? Yes, sir. Good. So I am just introducing to the company secretary course. So first I will let you know what is the eligibility. The students who have passed senior secondary examination, that is 10+2 pattern, or appearing in senior secondary examination, चाहे तो आप appear कर रहे हैं या appear हो चुके हैं, with the condition of submitting 12th pass proof at the time of executive program registration. तो जो entrance exam होता है उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, या फिर आप उसमें appear कर रहे हैं तो आपको appear कर चुके हैं तो आपको एक passing certificate लगाना पड़ेगा अगर आपको नहीं मिला है तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी। अब आप डेट्स को मैन्युअली देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट्स और एग्जामिनेशन डेट्स हैं स्क्रीन पे देखिए आप। 21 जनवरी से 15 अप्रैल तक के जो लोग रजिस्टर करते हैं स्टूडेंट्स, उनका एग्जामिनेशन डेट होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, ठीक है। सेकेंड जो स्लॉट है उसमें 21 मई से 15 जून तक के जो बच्चे रजिस्टर करते हैं उनका सेकेंड सैटरडे ऑफ जुलाई एग्जाम होता है। थर्ड है जो रजिस्टर्ड बिटवीन 21 जुलाई टू 21 अक्टूबर, अभी ये डेट बढ़ गई है क्योंकि कोविड आया तो इसलिए हमने उसको 21 जुलाई से 21 अक्टूबर तक कर दिया, तो अभी भी वो स्लॉट थर्ड का अभी ओपन है। तो जो स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं दे कैन रजिस्टर टिल 27 अक्टूबर, जिसका एग्जामिनेशन 21 नवंबर को होगा। इसकी डेट फिक्स कर दी है, इसका सेकेंड सैटरडे जो था वो आगे बढ़ा दिया है, इसकी डेट फिक्स कर दी है 21 नवंबर। और जो बच्चे 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक रजिस्टर करेंगे उनकी होगी एग्जामिनेशन सेकेंड सैटरडे ऑफ जनवरी। सो दिस इज द शेड्यूल। पीपल विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हम लोग इसको शेयर भी कर देंगे, लेकिन अभी इमीडिएटली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसकी फीस है 1000 रुपीज। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है? CSEET shall be held on a single day consisting two parts. First is computer-based test, that is 120 minutes for business communication, legal aptitude and logical reasoning, economic and business environment and current affairs. ये आपके जो 4 सेक्शन है computer-based test में रहेंगे। And then part B is Viva Voice. So 15 minutes का आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर देना रहेगा। पहले जो था वो डायरेक्टली हो जाता था, लेकिन अभी हो सकता है इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो यू हैव टू सेंड अ वीडियो और somebody will from the headquarter will take or from the regional chapter will take the Viva Voice, like आपके कॉलेजेस में भी होता है, तो उसके 15 मिनट्स का वो रहेगा। So aggregate of 50% and minimum 40% mark in each subject will be the qualifying criteria, ठीक है। आपको एग्रीगेट जैसे 200 में से 100 लाने हैं आपको, और हर पेपर में 40-40 मार्क्स लाने हैं, तब जाके आप पास होते हैं। The duration of the test shall be 135 minutes, 120 minutes for MCQ test and 15 minutes for Viva Voice. There will be no negative marking. Next is, ये आपका फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट हो गया। जैसे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करेंगे देन वी विल बी एलिजिबल फॉर CX एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो उसकी वैलिडिटी, कट ऑफ डेट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और प्रोफेशनल साथ ही साथ प्रोफेशनल की भी क्या है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसमें कि CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपको CSEET पास होना इंपॉर्टेंट है। फाइनल पास स्टूडेंट ऑफ ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड IC कॉस्ट अकाउंटेंट विद एन एग्जेम्पशन फीस, वो लोग भी इस एग्जाम में मतलब एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंटर हो सकते हैं जो फाइनल पास हो चुके हैं स्टूडेंट CA के और CWA। तो उनकी जो डेट्स हैं यहाँ पे लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 5 years 31 मई फॉर बोथ मॉड्यूल्स इन दिसंबर। ये सब जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, इसके बारे में इतना चिंता न करें। इसके बारे में आपको चैप्टर ऑफिस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑनलाइन है। ICSI.edu या ICSI.in पे आप जाके ये सब देख सकते हैं कि 31 मई तक आप बोथ मॉड्यूल्स फॉर एग्जीक्यूटिव इन दिसंबर सेम ईयर, मतलब मई में कर रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन तो सेम ईयर के दिसंबर में आप अपीयर हो सकते हैं मॉड्यूल में, ऐसा इसके बारे में मेंशन है। अभी आप उतना ही जानिए जितना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। तो आप मोटा मोटा फीस के बारे में जान सकते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की जो फीस है CSET जो पास स्टूडेंट की वो 8500 रुपीज है सेकंड लेवल में। फॉर CS फाउंडेशन पास स्टूडेंट इज 8500 अगेन। For final pass student of ICAI is 13,500. For pre-examination of test is 1,000 rupees. 1 day orientation fees rupees 600. Chartered secretary fees is 500, which is optional. तो ऐसे प्रोफेशनल प्रोग्राम की जो फीस है वो 12,000 है।
और उसका प्री एग्जाम जो टेस्ट होता है वो 1000 रुपीज। तो बहुत ही रीजनेबल कोर्स है। ऐसे इतना रीजनेबल कोर्स मतलब शायद ही कोई होगा जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। आप ऐसे ही लाखों रुपए एमबीए के एंट्रेंस में लगा देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए लगाते हैं, IEEE पता नहीं क्या क्या से कोर्स होते हैं, सब में लगा देते हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई। जो टेक्निकल कोर्स भी कर रहे हैं ना, जस्ट गिव इट अ ट्राई, बिकॉज ये कोर्स आपको एक अलग लेवल पे पहुंचाता है, मैनेजरियल लेवल पे पहुंचाता है। तो आपका वैल्यू एडिशन के लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको मेन कोर्स की तरह ऑप्ट कर रहे हैं वो तो सही है, जिसको एक एडिशनल कोर्स भी करना है ना, उसके लिए भी ये जबरदस्त कोर्स है, क्योंकि आपको कंपनी कैसे चलाते हैं उसके बारे में सब पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपको बताया कि 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आपको वो देना रहेगा, है ना। और आपको जो ट्रेनिंग के बारे में बताया कि 1 मंथ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 15 डेज का ऑनलाइन क्लासरूम मोड रहता है, 21 मंथ का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं आप, जैसे हम कंपनी है तो हमारे अंडर में जो मैनेजमेंट ट्रेनीज है वो अपॉइंट होते हैं, वो 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करते हैं ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आए। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, हम उसके बारे में प्रैक्टिकली उनको सिखाते हैं कि भाई जो आपने फॉर्म पढ़ा वो फाइल कैसे होता है, एमसीए क्या होता है, पोर्टल पे कैसे लॉगिन करते हैं, डीएससी कैसे बनाते हैं, डिन कैसे बनाते हैं। तो प्रॉपर 2 साल तक के हम उसको पकाते हैं और वो फिर हीरा और सोना बनते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब कंपनी में भी हो सकती है और प्रैक्टिसिंग सीएस के पास भी हो सकती है। और फिर उसके बाद भी 1 महीने की रेसिडेंशियल कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है, जो कि मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली ऐसी बड़ी सिटीज में होता है। आपको वहां रह के रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जैसे आईएएस की ट्रेनिंग होती है ना, उस टाइप की ट्रेनिंग होती है कि दिन रात 24 घंटे वो ट्रेनिंग चलती है। रात को 2 बजे भी लेक्चर्स होते हैं, रात को 2 बजे भी सेशन होते हैं, बहुत मजा आता है उसमें। तो वो जबरदस्त आपको फुल प्रूफ रेडी कर देती है आपको हर चीज के लिए कि आप कंपनी में कैसे काम करेंगे और कैसे उसको चलाना है। प्लेसमेंट और पैकेजेस के बारे में तो सोचिए ही मत, क्योंकि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर रहता है और एक न्यूरोलॉजिस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या फीस रहती है और एक न्यूरोलॉजिस्ट की क्या फीस रहती है। तो दिस कोर्स विल मेक यू न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं, और आप लोगों से हटके अपने आप ही फीस चार्ज कर सकते हैं अपनी, आपकी स्किल्स के ऊपर, है ना। तो डिग्री सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन अपनी इंडिविजुअल जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, वो आपको आगे लेके जाती है, वो आपकी डेवलप हो जाती है, और आपकी नॉलेज वो आपको आगे लेके जाती है। उसके बेसिस पे आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। ये जो मैं एक स्लाइड स्किप कर रहा हूँ जो कि अमिता मैडम के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। फर्स्ट लेवल, उसके बाद जो सीएस एग्जीक्यूटिव है उसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस, मॉड्यूल 1 में जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, सेकंड है कंपनी लॉ, थर्ड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, फोर्थ है टैक्स लॉज, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। मॉड्यूल 2 में आपके पास कोर्स हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड इज सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो देखिए आप कितना डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो, है ना, सबके बारे में आपको नॉलेज मिलती है। ये सेकंड लेवल पे मिल जाती है। अब आप देखेंगे इसको थर्ड लेवल पे सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या पढ़ते हैं हम। फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। सोचिए हम कॉर्पोरेट एथिक्स भी पढ़ाते हैं। सेकंड इज एडवांस टैक्स लॉज, थर्ड इज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। हम मॉकअप, जैसे आप लॉ के स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं कि पिटीशन ड्राफ्ट करना, प्लीडिंग्स में अपीयर होना कैसे होता है, तो इसके मॉक सेशंस भी होते हैं हमारे यहाँ पे। सेकंड मॉड्यूल में आप पढ़ते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। फिफ्थ है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। सिक्स्थ इज रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। एंड थर्ड मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, multidisciplinary case studies. The examination of all this paper will be open book examination. तो ये जो पेपर है इसका ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि आप अपने मनपसंद बुक लेके जा सकते हैं। तो क्वेश्चन भी उसी टाइप के रहते हैं थोड़ा सा। तो आपके लिए ओपन बुक इसलिए रखा है कि आप उसको रेफर करके आपकी मतलब आपके आंसर्स जो है प्री डिफाइंड नहीं रहेंगे।
हर बच्चा अपने हिसाब से उसका आंसर लिख सकता है। इलेक्टिव 1 पेपर आउट ऑफ 8 पेपर बैंकिंग, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर देना है, बैंकिंग देना है, इंश्योरेंस देना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देना है, फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, लेबर लॉ, वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडलिंग, इंसॉल्वेंसी, इन सब में से आप वो ओपन बुक एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जैसा कि पहले बताया कि सभी के लिए मैंडेटरी है 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में जो मैंने अभी बताया वही सब सिखाया जाता है कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूट, क्या होता है चैप्टर, कैसे ये बना, और उसके बाद उसमें सीएस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, और पूरा प्रोग्राम जो सीएस कोर्स में रहता है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट में एग्जामिनेशन सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ ही हम अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इस पे चला रहे थे, हमारे टीचिंग या कोचिंग सेंटर पे जो हमारा चैप्टर ऑफिस है वहाँ पे हम लोग क्लासरूम टीचिंग सेंटर्स बनाया हुआ है, जहाँ पे स्मॉल बैचेस में बेस्ट फैकल्टीज के साथ हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बात करते हैं, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेस पे रहती है कि स्टूडेंट के साथ टीचर पे इंटरेक्ट करता है, और अमिता मैडम जो ऑफिस इंचार्ज है वो भी इंस्टीट्यूट के बारे में, चैप्टर के एक्टिविटीज के बारे में सब बताती है। एक्सेस टू द फैकल्टी, डाउट क्लियरेंस क्लासेस, एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात रीजनेबल फीस। मतलब आप देखेंगे कि अगर मार्केट में एक किसी मॉड्यूल की फीस 25,000 है, तो हमारे चैप्टर ऑफिस में वो फीस 12 से 15,000 रुपए रहेगी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ क्लासेस, ऑन द क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज, है ना। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्योंकि पैंडेमिक के बाद फिजिकली प्रेजेंस नहीं हो रही, तो वहीं पे हमने चैप्टर क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है, तो बच्चे वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बारे में चैप्टर ऑफिस से पता किया जा सकता है, लिंक भी दी है, अमिता मैडम उसके बारे में बता देगी कि वो क्लासेस कब कब चलती है, और आपको 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस की गारंटी दी जाती है विद द ऑप्टिमल फीस इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है विद द लेटेस्ट बुक। अभी आपको बताऊंगा मैं कि हमारा एक नया चैप्टर ऑफिस बन रहा है, पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया, वरना अभी तक हम इनॉग्रेट कर चुके होते, मेरी चेयरमैनशिप में ही हो रहा था, लेकिन वो डिले हो गया। बट वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चेतक कॉम्प्लेक्स में 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है, प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी है, ऑनलाइन बुक्स हैं, हाँ सारी फैकल्टीज के, मतलब स्टडी रूम्स है वहाँ पे, क्लासरूम से 3 एक साथ एग्जीक्यूटिव, फाउंडेशन या प्रोफेशनल की क्लासेस एक साथ रन कर सकते हैं हम, इतना प्रोमिनेंट स्पेस निकाला है हमने उसके लिए। हाईटेक ऑफिस है पूरा, फुल सेंट्रलाइज्ड एसी, फुल सर्विलांस कैमरास, full Wi-Fi, everything will be there. Just it's a matter of few months and you will be there sitting in that premises and having your course, right? So learning through practical approach, we are, जैसे हम लोग अपने कंपनी सेक्रेटरीशिप हम लोग करके 15 साल हो गए, तो इसके बाद हमारी जो लर्निंग्स है वो हम पास ऑन करते हैं अपने स्टूडेंट्स में, तो हम एज अ गेस्ट फैकल्टी भी वहां जाके बताते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, राइट? So this is a value addition, advantage to participate or to join the online or classes through the chapter office. उसका एडवांटेज यही है कि हम जैसे अमित सर आए, मैं हो गया, और भी सीनियर सीएस को हम बुलाते रहते हैं ताकि दे विल इम्पार्ट देयर नॉलेज। स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स, ये सब होते रहते हैं, डेमो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स, तो ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, आप प्लीज इसको ज्वाइन करिए। और आईसीएसआई, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आईसीएसआई सिग्नेचर अवार्ड है जो कि हम यूनिवर्सिटीज के साथ करते हैं। The purpose of this scheme is to introduce, to develop the competitive spirit among the students studying in the various college affiliated to the university. तो जैसा हमारा JLU के साथ MOU साइन हुआ है, तो उसके अंडर भी हम लोग, अगर आपके यहाँ MBA, आपके यहाँ BCom के कोर्सेस हैं और BCom कोर्स में अगर कोई टॉप रैंक होल्डर आता है तो उसको हम अवार्ड दे सकते हैं। तो इसके बारे में अमिता मैडम प्लीज आप कोऑर्डिनेट करिएगा अंकित जी से, और हम JLU में एक सिग्नेचर अवार्ड करना चाहेंगे वेरी सून। ठीक है अंकित जी? So this is from my side. For further details, you can contact to chapter office. This is the number. You can take the screenshot, and this is the email ID bhopal@icsi.edu. Thank you so much. Thank you so much, Yogesh sir. There were certain beautiful insights, and I am sure that students have understood and have gotten to know what they did not probably know about the course and the importance and the key procedural realities about what a company secretary actually does, and you being associated. I am the live example. I am the live example. You can follow me. Even Amit Bhai is a live example.
we are hardly 38 years. I am disclosing my age. We are hardly 38, 39 years, close to 40. And we have already had an experience of more than 15, 16 years. He is in practice since he has qualified his course, and I am in employment since I have qualified. So Yes. in both the ways, and you can see our growth. We are the live examples in both the options. He is always in practice. He was always in practice, and I was always in employment. And we have both grown together in the next level. Yes, sir. That's what I was saying, that pursuing CS and becoming a company secretary, because it's all about, reading the subjects, and you can become a company secretary at the age of 23 or 24. If you start from the very first year or even after 12th. So that is something that is So very. start as early as you can. Yes, sir. That's what I'm trying to tell my students, that if you have that particular inclination towards the corporate side, CS is always an added advantage, and you being a part of the smart city project. Yes. मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आप कोई भी चीज कर लें, आप कोई भी कोर्स कर लें, अल्टीमेट ऑप्शन क्या होता है, वो कब ग्रो करेगा, जब आप उस कंपनी में जाओगे, उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल होगी, ठीक है, वो बिकेगी, कंज्यूमर उसको पे करेगा। तो अल्टीमेटली कोई भी आइडिया हो, कोई भी कोर्स कर लो, आपको अल्टीमेटली चलानी तो कंपनी है ना। बिना कंपनी के क्या वो आइडिया बिजनेस मॉडल बिक सकता है? नहीं बिक सकता। आप छोटा सा टॉय मेकिंग कंपनी भी हो तो वो उसी कंपनी से ही बेचेगा, है ना। एक खिलौना भी बनाना है तो कंपनी होगी उसकी, एक गाड़ी बनानी है तो भी बनाई गाड़ी है, लेकिन बेचेंगे कैसे? एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो हर चीज के लिए आपको कंपनी बनानी है, और आप उसके ज्ञाता हो तो आप अपनी कंपनी बनाओ, अपनी कंपनी चलाओ, कौन रोक रहा है? Yes, sir. Because there are certain legal compliances that you have to follow before you release your product into the market. So obviously there is an entire system that is there. And company secretary, what it does, what a company secretary does, it brings the system to the company, and it makes sure that the company follows all those systems, so that the business part of it runs smoothly. So that's Exactly. the role that a CS plays. It was really nice. It was a really nice interaction with you, Yogesh sir and Amit sir. Amita ma'am, if you wish to add anything to finish this particular conversation. Any questions Or if if any students question, are having? there is Yeah. one question on the chat box, sir. It's a simple question. One of our students has asked that, being a BLLB student, because most of our law students are BLLB students, they are learning humanities, studying humanities. So would it be difficult for them to understand or comprehend some of these subjects, such as security laws and investment and commercial laws? This is I would a say rather it honest is question. I would say rather it is little simpler for BA LLB student to understand all the subjects, because you are already doing BA LLB and you are very much conversant about the courses, laws, company laws, because laws are interconnected. The language is interrelated. So you can easily adapt that language, adapt that course of CS. So I think it is very simple for BA LLB students. Just do it without any thought, second thought. That's what I was trying to put forward here, that it is quite easier for law students, because sometimes BCom students find it difficult to understand the laws, because After doing CS, I have done LLB, so I found it very simpler. So same feeling will be for BA LLB student. They will also find it very simple. So it's very it's strongly recommended that a person who is doing law and who has an inclination towards corporate side, that they pursue CS, and ICSI is doing a great job in producing efficient and well polished and all round functionary CS, because ICSI has been doing a great job, and I have been my friends, many of my friends are CS. My wife herself is a company secretary. So great. So that is very good. The course itself and the course and the content that it offers, it's amazing. So is there any question, students? Any other question that you want to put to Yogesh sir at this point? So if there's no question, because people will take time to put questions, yes, so you can have my direct ID. I am writing it here: connect.yk24@gmail.com. You can drop any question on this mail ID. Sure, sir.
Or Sir, you can I connect have, to Amita ma'am also, right? I think yes, Rohit sir, our faculty, our commerce faculty. I would like to introduce Yogesh sir to Rohit sir. He's the commerce faculty at School of Law. He teaches corporate tax planning and other subjects. I think he has a question, Rohit sir. sir, actually, I have one question regarding the CS only. Yeah, Yogesh sir, please. Yes, yes, I'm sir, listening to you. sir, actually, I have also completed my ICWA in August 2010. I Mhm. mean, like you have told me that after the 12th class, after the 12th, the student should go for the CS. So the sir, same pattern I have also followed, and I have Mhm. completed my ICWA intermediate in 2010. I mean, in 2010 only. So sir, my question is that sir, like I have seen the few of my friends who have completed the ICW also, and who have also done with the CS also. So sir, Mhm. still there is some exemption of the subject after the completion of the ICWA or the CMA. Sorry. So I have already mentioned, yes, those students who have done CS, CWA, they can directly enroll for the CS executive examination. And there are subject-wise exemptions also. Even I have taken some exemptions. So there are subject-wise exemptions Okay. that will be displayed on our website. And Amita ma'am, you might be aware about the exemptions. Yes, Can sir. you please help him with Yes, subject? sir. What are the yeah? Please go ahead. Sir, if he has qualified the cost accountant course, he can take the exemptions in tax law paper, corporate management accounting paper, and financial and strategic management paper in executive program. And in professional program, he can take exemptions in advanced tax laws, corporate funding listing, and one elective paper, valuation and business modeling. The these the total he can get total 6 papers exemptions Great. in the course. Thank you so much, ma'am. So, Mr. Rohit, I hope she has answered your question properly and you are satisfied with that. Here to clarify my doubt also. Okay, sir. Thank you so much. My pleasure. Okay, so I think at this point, no questions are coming, so we may wind up the session. It was really amazing to hear Yogesh sir on the key aspects of company secretaryship and the procedure to get into this course. Amita ma'am, if you would like to say anything before we end. Yes, definitely. I would like to add if any of you wants to inquire about the course or get a wider knowledge, you can visit us. Our office is at MP Nagar Zone 2. Okay, and sir has displayed the number also. You can contact over phone. Yeah. We are always available. In spite of that, our website is also there, www.icsi.edu. You can visit that. There, everything is available. If you have any confusions, you can contact us. We are available. I'm sure that most of our students are motivated and they will be in a position to pursue or start thinking about pursuing company secretary, and I'm sure they will get in touch with you, ma'am. With this, I just would like to bring this session to an end, and I would at this point would like to thank our top management, key management persons, Shri Harimohan Gupta ji, our Honorable Chancellor, Shri Abhishek Mohan Gupta, our Pro-Chancellor, and Professor Dr. Vivek Khare, our Honorable Registrar, who was a key person in bringing ICSI and JLU together. And under his Yes. guidance, we Special are. thanks to Vivek, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. So under his guidance, we are able to put together this program and host Yogesh sir. Say my thanks to Abhishek ji. He's a good friend of mine. So Yes. say my thanks to him His for giving dynamic an opportunity. And yes, sir. we can have another session on startups and like, because we are running an incubation center, and I know that you are also running an incubation center in media. Yes, sir. So we can cross collaborate in such manner. We have already had a MOU. So we can think over having another session on startups. Yes, sir. So I'm sure that Abhishek sir would also be very much interested in making this MOU completely and totally beneficial for our students and make it fully functional MOU by conducting a lot of activities.
not even at a school level, but at the university level, in which all the students from all the schools, whether it's media, tourism, management, commerce, law, even engineering, can participate. Then I would like to thank our Dean, Faculty of Law, Public Policy and Humanities, Professor Dr. Yogesh Srivastav, who has been completely supportive every time we are hosting such events for our students. And then lastly, I would like to thank Rohit sir for his kind coordination, and my dear students who have come here to show their interest, to get motivated. And most importantly, I would like to thank Amita ma'am for putting this together and organizing this. And obviously Amit sir and Yogesh sir for sharing their valuable thoughts with our students. I'm sure we will be connected in the future, because there are many things that our students still have to learn about this side of practice of CS and corporate side and company law. So thank you, Take sir. the decision first. Yes, sir. At the end, I want to say, take the decision that you want to do this course and learn from expert. Two advice. Okay, so Yogesh sir has put it rightly to close it all up, that first decide and then get guided by the experts in the field. All right. Thank you so much, everyone. It was really nice. I hope we meet again very soon. I'll end this meeting now.